A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg, Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering here at SISTEC, Gandhinagar, Bhopal. We have been undergoing the course of engineering thermodynamics, and in our whole journey, we have already seen what non-reacting system thermodynamics are and how they behave. And now we will be studying what reacting systems are. What do I mean by this? I will explain in details ahead in the upcoming slides. For today, we are going to start our new topic. The topic name is fuels and combustion. Fuels and combustion. So let us begin our today's topic, that is fuels and combustions. What we have done previously in our unit 3 of this course, we have already seen what power cycles are. We have already seen what air standard assumptions are. We have already seen Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle, dual cycle, and Brayton cycle. A small summary of all of these are that power cycles are those cycles in which we provide heat, and in return we get some work done by a heat engine that is developed, right? Air standard assumptions, these are those assumptions that we consider them to be true even though if they are not, right? What do I mean by this is that we consider the air to be the working medium, working fluid, whereas air is not always the working medium. We know that we use some fuel instead of air. Instead of only air, we use some fuel, but still we consider that air is only the working medium. We also assume that specific heat of the fuel of the air is not going to vary with respect to temperature. That means that at whatever temperature we are considering, the specific heat or the temperature raising capacity of the fluid does not change. That was also one of our assumption, and one of our assumption was that the friction between all the parts was negligible, right? So these were the air standard assumptions that we have made, and based on all these air standard assumptions, we have developed some theoretical cycles, and on those theoretical cycles our heat engines were working. Those theoretical cycles namely were Carnot, Otto, diesel, dual, and Brayton. Carnot was the ideal cycle. It was the most efficient cycle, which was consisting of 4 processes. The process was compression, then heat addition, then expansion of fluid, and then finally heat rejection. This was also an idealized cycle, and it was giving the maximum efficiency, as I just told you, right? The 4 processes were the compression and expansion were taking place isentropically, whereas the heat addition and heat rejection were taking place isothermally. In Otto cycle, similarly 4 processes were used, and the cycle was consisting of 4 processes. 2 were compression and expansion, they were also isentropic, and 2 were heat addition and heat rejection, and those processes were isochoric. That means that volume was not changing during heat addition and heat rejection. In diesel cycle, again 2 processes, though compression and expansion were isentropic, and heat rejection was isochoric, just as it was in Otto cycle, but the heat supplied to this cycle was not at isochoric process as was in Otto cycle, but it was on isobaric process. It was an isobaric process. That means that the pressure was constant during the heat addition process, right, in diesel cycle. Then came dual cycle. The heat supplied was partially on constant pressure and partially was on constant volume and constant pressure, right? So it was a combination of Otto and diesel. Then came our Brayton cycle. It was used in aircraft engines, and Brayton cycle was having constant pressure heat addition and constant pressure heat rejection. We have also done comparison of Otto, diesel, and dual cycle based on some parameters that we have fixed compression ratio sometimes, and when we have fixed compression ratio, we have seen that always Otto cycle was much more efficient than diesel cycle, and dual cycle was lying in between.
And when instead of compression ratio we fixed other parameters such as the work output was fixed or the heat supplied was fixed, then we have noticed that diesel cycle was giving much more better efficiency instead of Otto cycle, and dual cycle was again lying in between. The other historical cycles we have studied, namely Lenore cycle and Stirling cycle and so on, and we have seen that how they are historically significant. Then in our last lecture we have seen the mixture of gases and how the gases perform when two or more gases are mixed together in order to form a mixture, and what are the properties of those mixtures will turn out to be. If gas A and gas B are given to you, and properties of gas A and properties of gas B were told, and then you were supposed to make a mixture of those gases, then what will be the properties that the mixture will be having, that we have found out in our last lecture, right? And let's move on to today's topic, and it is fuels and combustion, right? So introduction of the unit. Let us introduce this unit. Up till now we have seen the kind of thermodynamics in which no reaction was taking place inside the system, that is, the system was being considered to be in chemical equilibrium, right? This I just told you that up till now what we were doing, we were taking a system, and in that system we were saying that the system was reacting with the surrounding, right? And we have never told that there is any reaction going on between the system, right? But now what we will say, that the system in itself is going in an equilibrium, or they are moving towards an equilibrium. From one chemical equilibrium to another chemical equilibrium, the system will move, right? System will take place, a system's reaction will take place, I mean. Okay, then sorry, I forgot, I have to change my language also. So मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि अब जब हमें पढ़ना है इस थर्मोडायनेमिक्स में, ये एक नए टाइप की थर्मोडायनेमिक्स है। इस थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखना होगा कि जो भी आपका सिस्टम है वो सिस्टम अब केमिकली भी इन इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी कि अब जो है अंदर आपके कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ला रहे होंगे, राइट? तो अब जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होने वाला है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस जो कि सिस्टम के अंदर हो रही होंगी। ओके, then now we will see the relationship between compositions of the reactants and the products. इसका मतलब यह है कि अब हम देखेंगे कि आपके पास रिएक्शन चालू होने से पहले किसी और आइडेंटिटी का एटम रहा होगा, और रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज होके कुछ और हो गई होगी, और रिएक्शन शुरू होने से पहले जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स रहे होंगे उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। जो भी आपका एटम्स रहे होंगे या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स रहे होंगे उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, एंड रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद जो फाइनली आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक? और हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट्स का टोटल जो मैटर है, यानी कि टोटल जो मास है, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसीलिए मैटर जो है फिर यहाँ पर कंजर्व रहेगा। नाउ वी विल ऑल्सो बी एनकाउंटरिंग सिस्टम्स विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सिस्टम्स। यस, अभी मैंने आपको बताया कि अब हम प्योर सिस्टम नहीं देख रहे होंगे, अब हम ऐसा सिस्टम देख रहे होंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों से वो सिस्टम बना हुआ है, एक से ज़्यादा चीज़ों से वो सिस्टम बना हुआ है। वी विल ऑल्सो स्टडी दैट वेदर रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम ये देखेंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो किसी एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगी या दूसरी आइडेंटिटी से पहली आइडेंटिटी की तरफ ऑटोमेटिकली आएगी। मैंने आपको बताया कि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है या दूसरी आइडेंटिटी से पहली आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है। हम ये चेक करेंगे इसी यूनिट के अंदर, और हम देखेंगे इस कौन सा लॉ इसे गवर्न करता है, यानी कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, वेदर इट विल टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट विल टेक प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हम अब इस यूनिट के अंदर देखेंगे और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे गवर्न करेगा, ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट इज दस वी विल बी सीइंग अ केमिकली रिएक्टिव सिस्टम। ये मैंने आपसे अभी बात कही थी कि केमिकली रिएक्टिव सिस्टम हमें मिलेगा जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस विथ मेजर एम्फेसिस ऑन व्हाट, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। यस, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो ये यूनिट बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूनिट इसलिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक जो भी आपने साइकिल्स पढ़ी हैं उन साइकिल्स के अंदर आपने जो हीट सप्लाइड की बात करी है या हीट रिजेक्टेड की बात करी है, वो कैसे हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड हो रही थी? वो हो रही थी आप कोई एक एक्सटर्नल सोर्स देते थे और उस सोर्स के जरिए हीटिंग प्रोवाइड कर दिया करते थे। बट अब क्या होगा? अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है आप ये कह रहे हैं कि अंदर ही फ्यूल बर्न हो रहा होगा और फ्यूल बर्न होने की वजह से कंबशन ऑफ फ्यूल विल बी टेकिंग प्लेस और उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी आपको उस पर ध्यान देना है, राइट। तो अब जो है आपका एक नए तरीके की स्टडी आ रही है क्योंकि आगे जाके आप आईसी इंजन्स पढ़ते हैं और आईसी इंजन्स के अंदर आपको ये कंबशन ऑफ फ्यूल्स को कंसिडर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट फ्यूल्स। तो फ्यूल्स, अब फ्यूल्स को हम सब ने खैर नाम तो सुना हुआ है फ्यूल्स। व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका कंबशन करा जा सकता है और उनका कैसे कंबशन करा जा सकता है? तो उनका कंबशन ऐसे करा जा सकता है कि जो भी मैटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्यूल, ये एक मैटर है, इसकी एक आइडेंटिटी है और ये एक फ्यूल है। तो अब इस फ्यूल को मैं क्या करूंगा? इसको हीट अप करना चालू करूंगा और हीट प्रोवाइड करके इस फ्यूल का मैं टेम्परेचर रेज करूंगा और इसका टेम्परेचर रेज होते तक एक नई वैल्यू तक पहुंचेगा जो वैल्यू होगी इग्निशियन वैल्यू, इसकी इग्निशियन वैल्यू या इग्निशियन टेम्परेचर। तो इग्निशियन टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा और उस टेम्परेचर के बाद ये फ्यूल या ये जो भी आपने मैटर लिया या जो भी मटेरियल था ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा। इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और ये एक केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगी। जो केमिकल रिएक्शन खत्म जब होगी तो ना आपके पास ये फ्यूल बचा होगा ना आपके पास ऑक्सीजन बचा होगा, बल्कि आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स मिल गए होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपका एक कंबशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से एक आपने फ्यूल लिया है, फ्यूल का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब आप ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और एट दी एंड आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, आपको वाटर वेपर्स मिल सकते हैं, आपको और भी XYZ ऐश मिल सकता है। इस तरीके के आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और इस रिएक्शन के दौरान आपका सिस्टम कुछ हीट को लिबरेट करेगा। डेल्टा, ये डेल्टा से मैं हीट को रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। तो इस रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ हीट लिबरेट हो रही होगी और वो हीट आप यूज करेंगे अपने सिस्टम को रन करने के लिए। So let us see what is written here. Fuels are combustible substances which once raised to its ignition temperature continues to burn. जैसे ही उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया जाता है तो वो फ्यूल अब खुद ब खुद बर्न होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अब बर्न हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने दूसरे पार्ट्स का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ा रहा है और ऑटोमेटिकली हीट प्रोवाइड करता रहेगा, अपने पार्ट्स का टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा और नए नए मॉलिक्यूल्स हमेशा रिएक्शन करते रहेंगे, राइट, जब तक कि वो उसका पूरा कंटेंट खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि उसका पूरा मास खत्म नहीं हो जाता विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। तो अब आपको एक्सटर्नल हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार उसकी हीटिंग करके उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया और अब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद उसने बर्निंग चालू कर ली, तो अब वो अपने आप को खुद बर्न करने के लिए सफिशिएंट है। अब आपको एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। बट हाँ, कंबशन होने के लिए मैंने क्या कहा? कंबशन होने के लिए मैंने कहा आपके पास क्या ज़रूरी होना चाहिए? आपके पास एक फ्यूल तो होना ही चाहिए, F फ्यूल, प्लस आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप इस फ्यूल को बर्न नहीं कर सकते। बचपन में हमने ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, एक कैंडल को जला करके और आप एक ग्लास के नीचे बंद कर देते थे तो वो कैंडल जो है वो बुझ जाती थी, उसका कैंडल की बर्निंग जो है वो खत्म हो जाती थी। क्यों? बिकॉज अंदर का ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, राइट। तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक बर्निंग चलती है। तो इसीलिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाह रहे हैं कि ये फ्यूल बर्न हो कंप्लीटली। तो आप ये कह रहे हैं कि द कंबशन प्रोसेस रिक्वायर्स अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस और टू कंटिन्यू। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने रिएक्शन चालू हो गया और फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। तो अगर आप ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो वो अपने आप जो है कंबशन भी बंद हो जाएगा
फिर भले ही आपका फ्यूल वहां रखा रहे लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, नहीं कर पाएगा कोई रिएक्शन, राइट। केरोसिन, कोल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये मटेरियल्स बेसिकली फ्यूल की तरह बर्न होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट अगर करते हैं तो ये एट द एंड आपको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनको फ्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल? एक फ्यूल कैसा होना चाहिए, एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो फ्यूल मस्ट हैव हाई हीटिंग और कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हमने बचपन में पढ़ी थी। यस, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि फ्यूल बर्न होने पे कितनी हीट लिबरेट कर सकता है, कितनी हीट देने की क्षमता रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे एक फ्यूल ले लिया एक वेराइटी का और यहाँ पे दूसरी वेराइटी का फ्यूल ले लिया, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास 1 kg है। और अगर जो है अब ये इसका 1 kg बर्न करने पे मुझे कुछ अमाउंट में x क्वांटिटी के अंदर हीट मिलती है और इसका फ्यूल बर्न करने पे मुझे x प्लस समथिंग यानी x से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट मिलती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो फ्यूल है सेकंड फ्यूल, इस फ्यूल की क्या है, इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू ये है कि आप ये देखें कि 1 kg फ्यूल बर्न करने पे आपको कितने अमाउंट में हीट प्रोवाइड करता है वो वेराइटी ऑफ फ्यूल। देन लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। यस, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने फ्यूल लिया है तो ये फ्यूल अगर आपने लिया है प्योर, मान लेते हैं ये कोल है, कोयला, तो अगर कोयला भी है तो कोयले के अंदर क्या होगा, कोयले के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी, जिसके अंदर से एक आपका ऐश कंटेंट तो होगा ही होगा, इसके अंदर राख भी मिक्स होगी, जिसे हम राख कहते हैं हिंदी में। तो ऐश कंटेंट तो होगा ही होगा, इसके अंदर सल्फर भी होगा, इसमें नाइट्रोजन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, राइट। सल्फर, नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, हाइड्रोजन, ये बहुत सारे इसके अंदर वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस पाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी पाया जा सकता है, यानी कि नमी जिसे हम कहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट CO2 के, गीला कोयला जिसे हम कहेंगे, गीला कोयला भी हो सकता है ये। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा आपका फ्यूल नहीं होना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट पाया जाए, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट पाया जाएगा तो क्या होगा कि जो भी आपकी बर्निंग हो रही है वो बर्निंग उस मॉइस्चर को ख़त्म करने का काम करती रहेगी, तो आपकी बर्निंग एफिशिएंट नहीं होगी, आपकी जो हीट है वो हीट लूज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट करने के लिए वो हीट का यूटिलाइजेशन होता रहेगा। इसीलिए आपका फ्यूल, आइडियल फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा ना हो। देन लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टिबल मैटर, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्यूल के अंदर ऐश भी हो सकता है, फ्यूल में सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूल के अंदर बहुत सारी XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आपका बेसिकली बर्निंग कौन करेगा? बेसिकली बर्निंग कर रहा होगा कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं, फ्यूल को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन ये दो लोग बर्निंग कर रहे होंगे। तो इसके अलावा बाकी जो हैं वो बाकी आपके यूजफुल रिएक्टेंट्स नहीं है, वो आपके यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे उनसे। तो इसीलिए जो है आप ये चाहते हैं कि फ्यूल ऐसा हो जिसके अंदर ये नॉन कंबस्टिबल मेटल, यानी कि जितना कम से कम हो वो ज़्यादा बेटर है, ये फालतू का कचरा जो है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडिली अवेलेबल इन लो कॉस्ट, मतलब आसानी से आपको अवेलेबल हो सके और कम से कम सस्ते से सस्ता हो, जो कि आजकल नहीं है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। देन इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यस, आसानी से आप उसको स्टोर करके रख सकें लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए और आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जा सके। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करते में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से स्टोर भी कर के रखा जा सके और फ्यूल ऐसा भी होना चाहिए जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट भी करा जा सके। देन हाई कंबस्शन एफिशिएंसी, कंबस्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बर्निंग होने पर, बर्निंग करने के लिए जितनी हीट उसे चाहिए, बर्निंग होने के बाद वो उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो आपका 1 किलो कोई फ्यूल है, उस फ्यूल को बर्न होने के लिए या इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए थी, अगर इसके बर्न होने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट
इस हीट से भी कम है, तो फिर ये किस टाइप का फ्यूल है जिसको आपको जलाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ी और इसने कम हीट लिबरेट करी, तो फिर ये फ्यूल आपका यूजलेस फ्यूल हो जाएगा, राइट। आपका फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम हीट ले और बर्निंग चालू करे, और फिर जब बर्निंग चालू कर रहा है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में खुद हीट आपको प्रोवाइड करे। तो बर्निंग एफिशिएंसी या कंबशन एफिशिएंसी इसकी अच्छी होनी चाहिए। कंबशन एफिशिएंसी से एक और बात हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल प्रोडक्ट्स कम से कम होने चाहिए, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो कोल रिजर्व्स हैं, हमारे इंडियन कोल रिजर्व्स के अंदर सल्फर बहुत कम पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कोल रिजर्व्स की, तो वहाँ पर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड्स बहुत बनते हैं, जैसे पीला पीला धुआं निकलता है और जो है एटमॉस्फेयर काफ़ी पॉल्यूट होता है उससे। तो हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड इंडिया में काफ़ी कम है। नेक्स्ट, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। यस, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट रहना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। बहुत कम क्यों ना हो? बहुत कम इसलिए ना हो कि अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो ऐसा ना हो रखे रखे आग लग जाए, ट्रांसपोर्ट करने के दौरान में आग लग जाए, स्टोर करने के दौरान में आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो इसीलिए ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उसको इग्नाइट करने के लिए इतने अमाउंट में हीट देनी पड़ी कि भाई उससे खुद से ही इतनी हीट हमें वापस नहीं मिल पाई, राइट। तो इसीलिए ना तो उसका टेम्परेचर जो आइडियल फ्लूइड होगा, आइडियल फ्यूल जो होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मॉडरेट है। फाइनली, कंबशन मस्ट बी एट मॉडरेट स्पीड एंड इजीली कंट्रोलेबल। कंबशन जो है एकदम से ना हो जाए बहुत तेज़ी से, और ऐसा भी ना हो कि बहुत स्लो 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 कंबशन हो रहा है। कंबशन एक मॉडरेट स्पीड पे होना चाहिए, मॉडरेट रेट पे होना चाहिए। फ्यूल कंजम्पशन रेट जो है बहुत तेज़ भी ना हो बहुत स्लो भी ना हो, और जो है बर्निंग ऐसी हो रही हो जिसको आसानी से कंट्रोल करा जा सके, अनकंट्रोलेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कि फ्यूल को किन किन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया कि फ्यूल बेसिकली हाइड्रोकार्बन फैमिली के होते हैं। हाइड्रोकार्बन फैमिली यानी कि फ्यूल जो है वो बेसिकली या तो हाइड्रोजन के कंटेंट से बना हुआ होता है या फिर आपका कार्बन के कंटेंट से बना हुआ होता है, या हाइड्रोजन और कार्बन की मिक्सचर, कोई ना कोई मिक्सचर होता है किसी ना किसी तरीके का, उस मिक्सचर से ये बना हुआ होता है। बट स्टिल इसके अलावा भी ये जो आपका फ्यूल है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारे अदर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर वेपर एंड ऐश, ये इस तरीके के कंटेंट भी इसके अंदर पाए जाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, इसके फिजिकल स्टेट के आधार पे हमने इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के अंदर आपका लकड़ी, कोयला एंड जो है चारकोल, कोयला एंड चारकोल, ये मैं 2 अलग कह रहा हूँ, लेकिन कोयला एंड चारकोल ये कोयले की वैरायटी आती है आपकी। तो सॉलिड फ्यूल्स के अंदर आपको ये 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। देन लिक्विड फ्यूल्स के अंदर आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा, डीजल देखने को मिलेगा, केरोसिन देखने को मिलेगा। बेसिकली सॉलिड फ्यूल जो है वो आपके प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, जबकि लिक्विड फ्यूल्स जो हैं ये आपके एनिमल डिकम्पोज से बनते हैं, राइट। डिकम्पोज आपको मालूम है ना, जैसे कि कोई चीज़ जब मर जाती है तो कई सालों के लिए अंडर द अर्थ सरफेस, कई सालों के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर दबा करके रखती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके फ्यूल में चेंज हो जाती है। तो प्लांट्स जब मरते हैं और प्लांट्स जब डिकम्पोज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है वो चारकोल टाइप का होता है, और जब एनिमल्स का जो होता है उससे हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इस टाइप के मिलते हैं, राइट। एंड देन देयर आर सम गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल्स के अंदर आपकी नेचुरल गैस आएगी एंड आपका कोल गैस आएगी, जो कि आप कोक के नाम से आप ज्यादातर जानते हैं इसे। नेक्स्ट, कंबशन रिएक्शन एंड कंबशन एनालिसिस। यस, कंबशन देख लिया आपने क्या होता है, उसके बाद अब अपन देखेंगे कि कंबशन की रिएक्शन क्या होती है एंड अपन उस कंबशन की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।
ओके, सो कंबशन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। अभी आपने बताया कि फ्यूल को जब बर्न कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे होते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन will be taking place, and that chemical reaction is known as combustion. Okay, and this chemical reaction during which interatomic bonds of the molecules of the fuel and oxygen are broken, right? यानी कि यही मैंने आपसे कहा था कि भाई जो फ्यूल है उसके बॉन्ड्स आपस में टूट रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन का कोई मिक्सचर रहा होगा, और अब जो है वो मिक्सचर एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, और वो किसका साथ पकड़ना है, वो ऑक्सीजन का साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना उन्हें ज़्यादा बेटर लग रहा होगा, और इस प्रोसेस को हम जो है कंबशन रिएक्शन कहेंगे। एंड देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन न्यू मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। यस, मैंने वही कहा कि ये पुराने साथियों का साथ छोड़ के नए साथी पकड़ लेंगे, राइट? हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे का साथ छोड़ के दोनों इंडिविजुअली ऑक्सीजन के साथ नाता जोड़ेंगे, और उस तरीके के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? आप इस तरीके के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो कि जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के दौरान आपको हीट प्रोवाइड हो रही है, सिस्टम आपको हीट दे रहा है, ठीक? The combustion of a fuel involves the oxidation of its constituents and the process is represented by a chemical reaction. यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि जब भी कोई फ्यूल बर्न हो रहा होगा तो बर्न हो रहा है का मतलब यही है कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और फाइनली जो है कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसको प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक सिंपल सी मीथेन फ्यूल है। इस मीथेन फ्यूल को CH4 कार्बन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के 4 एटम ये आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम मीथेन कहते हैं। अब आपने जो है मीथेन फ्यूल लिया है और इसका आप ऑक्सीडेशन देखना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मीथेन का 1 मोल लीजिए, या 1 है, अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन लिया गया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, यानी ऑक्सीजन के 2 मोल लिए। मोल आपको याद है ना, हमने लास्ट टाइम बताया था मोल क्या होते हैं। मोल मैंने एक एवोगैड्रोस नंबर आपको बताया था कि इतने क्वांटिटी में जब कोई चीज़ मिलेगी तो उसको मोल कहा जाएगा, तो यानी कि इतने एटम्स लिए इसके, ठीक है, या इतने मॉलिक्यूल्स लिए इसके ऑक्सीजन के। तो ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन लिया गया और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए गए, तो इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो हीट लिबरेट हुई, एंड साथ ही साथ जो है जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए वो प्रोडक्ट्स क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड ये आपका वाटर वेपर्स, राइट? 2H2O वाटर वेपर्स। तो अगर आप देखेंगे तो कभी भी अगर एक केमिकल रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस तो आप लेफ्ट साइड की चीज़ों को कहते हैं हमेशा रिएक्टेंट्स, और राइट साइड की चीज़ों को आप हमेशा क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और अगर आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर सर क्या कुछ चेंज आ रहा होगा, तो सिर्फ इनके मॉलिक्यूल्स का चेंज आ रहा होगा। पहले देखिएगा मीथेन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनकी आइडेंटिटी बदल गई है लेकिन जो है इनकी क्वांटिटी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल कार्बन के जितने मोल्स यहाँ लेफ्ट साइड में थे उतने ही मोल्स कार्बन के राइट साइड में रहेंगे, हाइड्रोजन के जितने लेफ्ट साइड में थे उतने ही राइट साइड में रहेंगे, ऑक्सीजन के जितने लेफ्ट साइड में थे उतने ही राइट साइड में भी रहेंगे। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को कंपेयर करके देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए 1 मोल तक इसका कार्बन का, राइट साइड में भी 1 मोल ही कार्बन का मिल रहा है और कहीं कार्बन नहीं लिखा, राइट? लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन के 4 थे और यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन के ये 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, राइट? ये 2 × 2 इज 4। तो आप ये कह रहे हैं कि सर लेफ्ट साइड में अगर 4 थे तो राइट साइड में भी 4 हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए कितने ऑक्सीजन है, ये 2 और × 2, तो ये ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं आपके पास, जबकि यहाँ पे देखेंगे आप तो ये ऑक्सीजन के 2 एंड ये ऑक्सीजन के 2, तो 2 एंड 2 इज 4, राइट? सो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के भी 4 हैं एंड राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो दैट मीन्स इज कि कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तीनों एटम्स इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ, तीनों एटम्स इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वल हैं, इवन दो लेफ्ट हैंड साइड के जो मैटर था उसकी आइडेंटिटी कुछ और थी और राइट हैंड साइड का जो मैटर है उसकी आइडेंटिटी कुछ और हो चुकी है,
The chemical equation is obtained by balancing the atoms of each of the atomic species involved in the reaction. The reactants disappear and the products are formed. यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि reactants जो हैं वो गायब हो जाएंगे और नई चीज बन जाएगी जिसको हम कहेंगे products, राइट? उसकी आइडेंटिटी में बदलाव आ जाएगा. Next. The complete combustion means that all the carbon in the fuel will burn to CO2. ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कंबशन का मतलब यही रहेगा कि जितना भी कार्बन था आपके हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वो पूरा का पूरा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, एंड पूरा का पूरा जितना भी आपका हाइड्रोजन था वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन आपका ये वाटर वेपर्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है. ओके, सो that is your definition of complete combustion. कंप्लीट कंबशन में अगर अब आपसे कहूँ कि कंप्लीट कंबशन हुआ या नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि जो आपके रिएक्टेंट्स थे हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर से कोई कार्बन की मात्रा ऐसी तो नहीं है जो कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड बने निकल गई हो, या कोई हाइड्रोजन की मात्रा ऐसी तो नहीं है जो कि बिना वाटर वेपर बने निकल गई हो. और अगर निकल गई है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो है कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, राइट? अभी ऊपर वाली इक्वेशन का हमने बात करी थी, तो यही मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट वाज यील्डिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. यही आपने अभी ऊपर डिस्कस करा था, राइट? मास बेसिस के ऊपर इसी सेम इक्वेशन की बात करें तो मास बेसिस के अंदर देखते हैं मीथेन CH4, राइट? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 6, राइट? तो मास कितना होता है? मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है ना? तो 6 × 2 is 12, राइट? तो ये कह रहे हैं कार्बन का कितना हो जाएगा 12 kg, राइट? देन हाइड्रोजन का होता है 1 एंड इसका मास नंबर भी 1 ही होता है, तो 1 × 4 is 4, तो 4 kg, राइट? तो ये कह रहे हैं अगर मीथेन आप टोटल कितना ले लें 12 + 4 यानी 16 kg ऑफ मीथेन अगर आप लें, तो अब आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा 2 मोल, ठीक? तो 1 मोल कितना होगा इसका? 1 मोल का आपका मास कितना होगा? 1 मोल का मास आपका होगा, अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज व्हाट, रिले में भूल गया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 एंड 8 का मास नंबर, ऑक्सीजन का मास नंबर इज 16 एंड बिकॉज देयर आर 2 एटम्स तो दैट्स व्हाई 16 × 2 is 32, राइट? तो 32 kgs ऑफ ऑक्सीजन आप ले लें, बल्कि 32 1 मोल के 32, तो यहाँ कितने हैं 2 मोल हैं, तो 32 × 2 दैट इज 64, राइट? तो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल कितना है 80 kg आपका रिएक्टेंट्स थे, 80 kg आपके रिएक्टेंट्स थे. तो अब जब इन्होंने रिएक्शन चालू करा, रिएक्शन चालू करने के बाद इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाया. कार्बन डाइऑक्साइड यानी वही कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12, तो हियर इट इज 12, राइट? एंड एक ही मोल है इसमें, तो 12 × 1 = 12. देन आपका ऑक्सीजन अभी हमने बात करी कि ऑक्सीजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर जो है वो है 16 एंड क्योंकि 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसीलिए 16 × 2 is 32 एंड अगेन 32 × 1 is 32. तो इनका जो है 32 kg आपका ये रहेगा एंड 32 + 12, राइट? 32 + 12 will be 44. टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा आपका 44, ठीक? कार्बन was 32 and कार्बन was 12 and ऑक्सीजन was 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड was 44. इज रिमेनिंग इज वाटर H2O. तो अगर वाटर की बात करें, हाइड्रोजन अगेन एक इसका एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर भी 1 है एंड बिकॉज इसके 2 आपके पास एटम है तो 2 × 1 is 2, तो दैट इज वाई 2 kg ऑफ हाइड्रोजन. एंड देन ऑक्सीजन की बात करें तो अगेन ऑक्सीजन जो है आपका 8 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 16 इज इट्स मास नंबर एंड क्योंकि एक ही एटम है ऑक्सीजन का इसीलिए 16 kg ये, तो 16 + 2 is 18 एंड 18 × 2 is 36. वाई 2 बिकॉज 2 मोल हैं इसके, राइट? तो 18 × 2 is 36, तो 36. तो अगर आप राइट हैंड साइड को भी ऐड करें तो आपका ये भी 80 kg आएगा और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें तो वो भी 80 kg ही आ रहा है. दैट इज वाई द मास इज ऑलवेज बैलेंस. आपने अभी नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करके बताया था, मैंने मास को बैलेंस करके बता दिया. मैं ये कह रहा हूँ
कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आपका रिएक्टेंट्स का जो आपका मास होगा वही आपका राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स का मास भी वही रहेगा, दस मास कंजर्वेशन विल बी अचीव्ड, मास कंजर्वेशन अचीव होगा। देन this topic is being continued. The energy released during the combustion equals to the difference in the energy of reactants and products. इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जो भी रिएक्टेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो भी रिएक्टेंट्स थे उनकी कोई एनर्जी थी जो कि उसके अंदर कंटेंट थी, उनकी एनर्जी थी, राइट हैंड साइड पे जो आपके प्रोडक्ट्स बनकर आए उनके अंदर कोई एनर्जी है, इनकी कोई अपनी एनर्जी है अगर इनको देख लें, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड के जो आपके रिएक्टेंट्स थे उनकी एक अपनी अलग एनर्जी थी। अब ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली वही एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, राइट। तो इनका सीधा सा बात यह है कि कितनी हीट जो है रिलीज होने वाली है ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्टेंट्स थे उनके अंदर कितनी एनर्जी कंटेंट रहेगी एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो यही इन्होंने सिंपल सी भाषा के अंदर यहाँ पर कहा हुआ। देन नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, राइट। ऑक्सीजन कहाँ से देते हैं? ऑक्सीजन एयर में से देते हैं, बट एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर गैसेज अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन को छोड़कर भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है ना, आपका नाइट्रोजन के अलावा भी गैसेज हैं, राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि जब एयर सप्लाई करी जाती है तो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करा जा होता बल्कि ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेज सप्लाई करी जा रही होती हैं। तो अब क्या आपका इसके ऊपर आपका क्या फीडबैक है? तो इसके ऊपर मेरा कमेंट ये है कि भाई हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अदर गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो उनका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा आपके रिएक्शन के ऊपर। हाँ, बट अब जो एयर है हम ये जानते हैं कि वो 21% ऑक्सीजन होता है उसमें एंड 79% नाइट्रोजन होता है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, अब आप कह रहे हो 79% नाइट्रोजन है, तो भैया ये तो चीटिंग हो गई। अब कुछ इसका सॉल्यूशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है कि यस नाइट्रोजन इज मच मोर इन क्वांटिटी देन ऑक्सीजन इन द एयर, बट द थिंग इज दैट द नाइट्रोजन इट इज ऑफ एन इनर्ट गैस, राइट। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है कि इनर्ट गैस का मतलब यह है कि ये इस तरीके का मटीरियल है, ये इस तरीके का आपका मैटर है जो कि किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट गैस है, तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो उतना ही इक्वल अमाउंट में राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके इस नाइट्रोजन की वजह से आपके कंबशन के अंदर कोई चेंज आया हो। तो अगर ये आप नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे तो ये CH4 + 2O2 ये इतना ही था, प्लस आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2 मोल ऑक्सीजन के दिए हैं तो 2 मोल फिर नाइट्रोजन के भी दिए जाएंगे। नाइट्रोजन कितना आएगा क्वांटिटी में? नाइट्रोजन आएगा 79/21, यानी कि जो वॉल्यूम आई है उसका 79वां हिस्सा जो है वो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप देखिए राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, बिकॉज ये जो है बिना रिएक्शन करे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपकी वो जो इक्वेशन थी, इससे पुरानी वाली जो इक्वेशन थी अभी हमने पढ़ी, उसके अंदर आपका नाइट्रोजन लेफ्ट साइड और नाइट्रोजन ही राइट साइड पे ऐड कर देंगे, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप एक नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। व्हाट विल बी द टर्मिनोलॉजी? द टर्मिनोलॉजी विल बी दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर which is required to provide the necessary quantity of oxygen, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई आपको बर्निंग करनी है तो आपके पास x क्वांटिटी में अगर फ्यूल रखा हुआ है, तो आप कितनी मास देंगे एयर की? तो ये कह रहे हैं जितना मास बिल्कुल सफिशिएंट होगा इस पूरे के पूरे x क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंबशन, जितना भी मास रिक्वायर्ड होगा वो, जितना भी मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा तो वो मास ऑफ एयर जो है वो कहलाएगा आपका थियोरिटिकल या फिर स्टोइशियोमेट्रिक एयर, राइट।
यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको अगर x क्वांटिटी ऑफ फ्यूल दे दिया गया है तो द एयर दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीटली बर्न दैट x क्वांटिटी ऑफ एयर इज नोन एज द थ्योरेटिकल एयर और स्टोइकियोमेट्रिक एयर. ओके, yes, again the topic is being continued in this slide as well. The reaction, अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कह रहे हैं द रिएक्शन मोस्ट लाइकली डज नॉट प्रोसीड टू कंप्लीट इफ द फ्यूल इज सप्लाइड जस्ट विद द स्टोइकियोमेट्रिक एयर. ये कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे अगर आप बिल्कुल स्टोइकियोमेट्रिक एयर सप्लाई करेंगे, यानी उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करेंगे जितनी क्वांटिटी की उसको एग्जैक्टली ज़रूरत थी. तो वो रिएक्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अपने कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ फ्यूल जो है वो अनबर्न्ड बाहर निकल जाएगा, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे बल्कि क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड. आपको मालूम है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, राइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO. और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या हो रहा है कि CO2 की जगह CO प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि वाइट धुएं के फॉर्म में आपको दिखाई देता है बर्निंग के टाइम पे, और जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल गैस है, पॉइजनस गैस है, राइट. तो द कंप्लीट कंबशन इज अचीव्ड इफ वी सप्लाई एक्सेस एयर. थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेस एयर सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक. तो जो एक्सेस एयर आप सप्लाई करते हैं वो क्या करती है, वो बेटर कंबशन होने में मदद करती है. तो ये कह रहे हैं एक्सेस एयर में लीड टू बेटर कंबशन. आप ज़्यादा अमाउंट में एयर देंगे तो उसकी रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि कंबशन बेटर होगा. एयर विल बी मोर देन सफिशिएंट बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने कहा एयर विल बी मोर देन सफिशिएंट, तो यस इट इज मोर, एंड बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट विल इट डू, इट विल स्टार्ट कूलिंग द फर्नेस डाउन, राइट. क्योंकि एयर जो है वो जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई है, तो अब वो एयर क्या करेगी, वो एयर आपके फर्नेस को ठंडा करने लगेगी और आपकी जो हीट आप बर्निंग करके इतनी मेहनत से जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हीट क्या होगी, वो हीट आपकी लॉस हो जाएगी. तो इसीलिए एयर अगर क्वांटिटी में आपकी ज़्यादा है तो आपके हीट लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके हीट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट. व्हेन द एयर इज सप्लाइड इन लेस क्वांटिटी, देन अगर एयर लेस क्वांटिटी में सप्लाई करी जाए तो जैसा मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे, फिर क्या बनने लगेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेंगे, राइट. एयर अगर कम क्वांटिटी में है तो ये जो है ये आपका डबल बॉन्ड्स क्रिएट करेगा और डबल बॉन्ड्स क्रिएट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके आगे भेजने लगेगा, राइट. अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगे रहे हैं, अगर वाइट धुआं दिखाई दे रहा है तो आपका मिक्सचर जो है, मिक्सचर स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, मिक्सचर जो है आपका मोर देन नेसेसरी एयर नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है आपका मिक्सचर जो है उसमें लेस देन नेसेसरी एयर है. और इस तरीके के मिक्सचर को अपन कहते हैं वीक मिक्सचर या फिर लीन मिक्सचर. क्या कहते हैं, वीक मिक्सचर या फिर लीन, दुबला पतला मिक्सचर, ठीक. वेयरएज इफ द एयर इज मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और अगर एयर जो है वो जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा आपने प्रोवाइड करी है तो वो क्या हो जाएगा, अमीर मिक्सचर या फिर रिच मिक्सचर, आपका जो है रिच मिक्सचर होगा, राइट. इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो फाइनली इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एयर फ्यूल रेशियो से, कि भाई क्वांटिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फ्यूल का रेशियो. तो एयर फ्यूल रेशियो एक्चुअली जितना है वो कंपेयर करा है अपन ने किससे, एयर फ्यूल रेशियो, जो कि आपका स्टोइकियोमेट्रिकली होता है, ठीक है. स्टोइकियोमेट्रिकली जितना रिक्वायर्ड था, तो अगर स्टोइकियोमेट्रिकली जितना रिक्वायर्ड था आपने उससे कम में सप्लाई करा है, कम मात्रा में सप्लाई करा है, तो ऐसा मिक्सचर क्या हो जाएगा, लीन मिक्सचर. अगर जितना स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिक्वायर्ड था उतना ही आपने एग्जैक्टली सप्लाई करा है तो ये क्या हो जाएगा, केमिकली करेक्ट मिक्सचर. और अगर जितना एक्चुअली है वो क्या है, वो ज़्यादा है स्टोइकियोमेट्रिक से, वो ज़्यादा है स्टोइकियोमेट्रिक से, तो आपका क्या हो जाएगा, रिच मिक्सचर. यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं यहाँ पे जो है आपका रिच मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज रिच इन एयर. ओके, so these are some of the basic terminologies related to what fuels are and what combustion process is. In our next lecture I think we will be discussing about the heating values and maybe see one or two examples.
of some reactions, and I think we will see how this calorific value is measured using a bomb calorimeter, and what are the enthalpy changes during enthalpy of formation, and something like that. So we will see those topics, and I think in our next class, even though I will try to finish it as soon as possible, मे बी थोड़ा लेक्चर आपका लेंदी हो सकता है, बिकॉज आई वुड बी इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग ऑफ द यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, so better be ready, you all should better be ready with the questions in your what do we call, in your discussion class this week. Okay, so that's all for today, and I think what do we call, thank you, right? Thank you.